we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज की बड़ी खबर सीधे रक्षा गलियारों से आ रही है। ईरान और बाकी दुनिया में जारी तनाव के बीच भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ गई है। जी हां, डीआरडीओ ने अग्नि-6 मिसाइल को लेकर अपना पत्ता खोल दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। चर्चा यह है कि डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने साफ कर दिया है कि भारत अब अग्नि-6 मिसाइल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस अब सरकार के हरे झंडे का इंतजार है। With respect to drones, there are a variety of drones. There are the low-cost drones, then there are the medium-altitude, long-endurance drones, and then you have these high-altitude, long-endurance drones. So each of these types of drones needs different capabilities. The low-end drones or the low-cost drones which fly low and can carry ammunition or munitions, I think the Indian industry is quite mature today. So DRDO's focus is not on those type of drones. DRDO is working mainly towards the MALE and the HALE type of drones. Even in MALE drones now the Indian industry is reaching a good level of maturity and we are helping them by providing the technologies which are necessary to build these drones. HALE drones is where our industry doesn't have the capability today and that is the area where DRDO is focusing on. So at least for the near future, next 10-15 years, drones are going to play a critical role as has been seen in the recent wars. And then as the anti-drone capability develops to a point where the effectiveness of these drones will come down, but they will continue to play a role in future wars. When it comes to ballistic missiles, the thought process in the country was that ballistic missiles are only or should only be used for deterrence. But I think based on the recent wars and the fact that our neighbors use ballistic missiles for tactical purposes, a decision has been taken within the defense establishment that ballistic missiles should also be looked at for tactical use in our service. And I think the Defense Secretary can elaborate further. There is a thought process that we should form a conventional missile force, where in addition to the cruise missiles, ballistic missiles will be part of that. अग्नि-5 तो हम पहले ही तैनात कर चुके हैं, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन अग्नि-6 का मतलब है 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता। इसका मतलब यह है कि भारत में बैठे बैठे चीन के किसी भी कोने को निशाना बनाया जा सकेगा। इसकी खास बातें ये हैं, एक साथ कई निशाने। इसमें MIRV तकनीक है, यानी एक ही मिसाइल में कई परमाणु वॉरहेड होंगे जो अलग अलग ठिकानों को एक साथ राख कर सकते हैं। दमदार वजन, ये मिसाइल 55 से 70 टन की होगी और 3 टन तक का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। सिर्फ अग्नि-6 ही नहीं, DRDO समंदर के लिए भी कुछ तूफानी तैयार कर रहा है। LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल तो और भी खतरनाक है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 10 गुना तेज होगी। 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देकर दिशा बदलकर हमला करेगी, यानी दुश्मन के जहाज के बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक बहस ये भी है कि क्या हमें सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन पर भरोसा करना चाहिए। इस पर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बड़ी गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रास्ते विकल्प यानी कि ड्रोन और मिसाइल काफी नहीं है। लंबे समय में लड़ाकू विमान ज्यादा किफायती होते हैं क्योंकि वो बार बार उड़ान भर सकते हैं और उनके हथियार सस्ते होते हैं। उनका मानना है कि एक कमांडर के पास हर तरह के विकल्प होने चाहिए ताकि मौके के हिसाब से सही फैसला लिया जा सके। The geography is becoming meaningless. In West Asia conflict, the distance between the adversaries is very large and they are able to cover it, mainly due to use of air power. However, I just want to make one point here that the way air power was used in West Asian conflict, it just means I think it is still going on. Their employment of air power was not proper in our sense compared to what we did in Op Sindoor. We had cleared conflict termination criteria.
and we could achieve it within a very short period of time. So what we have learned that the sequence of targeting, it is very important. So you have to go for eyes, brains, muscle. If you don't do that, then your conflict may not, if you just hit the brain first maybe, then the system will continue to work. This is what we have seen in Iran happening. First you have to kill the eyes, sensors, electronic sensors, radars, there are drones which are taking photos, maybe jam satellites if possible. That is sensor. If he can't see, he cannot do anything. Because in today's world, the fog of war is actually lifting. Because the amount of sensors which are available, the battlefield has become transparent. So because of which we have to hit sensors. And once you hit sensor, you have to hit his command and control center. So that he cannot take decision. Now, little bit of military forces which will be left, which are taking decision on their own, you have to kill them. So this is the way if you go, you will be able to quickly terminate the conflict on your terms. हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट कब होने वाला है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। डीआरडीओ चीफ ने समिट के दौरान हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत का LRSHM प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। बहुत जल्द इस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला ट्रायल किया जा सकता है। भारत इस समय 2 तरह की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसमें पहली हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है और दूसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ग्लाइड मिसाइल का विकास क्रूज मिसाइल की तुलना में काफी आगे निकल चुका है। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि किसी भी रडार सिस्टम के लिए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। अब यहाँ पर ग्लाइड और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। समीर वी कामत ने इन दोनों तकनीकों के बीच का बारीक अंतर भी समझाया है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है। ये पूरी उड़ान के दौरान इंजन की शक्ति से चलती है। वहीं हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को शुरुआत में एक बूस्टर के जरिए तेज वेलोसिटी दी जाती है। उसके बाद ये बिना किसी बाहरी पावर के हवा में ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। भारत इन दोनों पर ही रिसर्च कर रहा है, लेकिन ग्लाइड वेरिएंट का परीक्षण अब बेहद करीब है। ये भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगा जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार मौजूद हैं। बता दें कि भारत अब एक नई और आधुनिक मिसाइल फोर्स बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी इस पर जोर दिया है कि भारत को मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस की जरूरत है। इसमें कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों का मिश्रण होगा। डीआरडीओ चीफ के मुताबिक इस फोर्स में 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल होगी। इसके अलावा इसमें क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी जगह दी जाएगी। प्रलय जैसी शॉर्ट रेंज मिसाइलें अपने टेस्टिंग के आखिरी फेज में है और जल्द ही सेना का हिस्सा बन सकती हैं। ये पूरी तैयारी भारत की सामरिक शक्ति को एक नया आयाम देने वाली है। कुल मिलाकर देखें तो डीआरडीओ का ये ऐलान भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी ताकत है। ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। आज की दुनिया में वही सुरक्षित है जो अपनी रक्षा तकनीक में सबसे आगे है। भारत की ये तैयारी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये थी आज की वो खबर जिसने दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। फिलहाल ईरान जंग के बीच इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।